ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹਾਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਲ ਆਵੋ। ਹਾਲਾ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੀ ਸੀ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਨਾਨੀ ਪੂਰੀ ਸਰੂਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਨਾੜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਹਾੜ ਦੇ ਸਿਰਫ 2-3 ਕੇਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲੋਂ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਨੀ ਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਨੀ ਆ, ਅਰਜੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਇਤਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਂਦੀ। ਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਰੋਲੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 2-3 ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਣੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਔਲਾਦ ਦਾ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਹਾਲਾ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾ ਐਬ ਹੈ। ਐ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਐ ਸੀ ਚੰਗਾ ਦੂਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਤੇ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਜਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹੋ, ਇਸ ਏਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਇਤਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਜਿਹਾ ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਣੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਉਸ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ 2-3 ਘੰਟੇ ਲਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, और छड़ के कोई करीम जी भी लांदी रही है, जिहदी वजह उन्हें आख्या तू 2-3 महीने सबर कर जा ते उम्मीद है कि तेरे घर औलाद होवेगी। कहंदे ओ जनानी आखदी ते दूजियां जनानियां सुन के भी बड़ियां मुतमिन हो गईयां सी कि इत्थे असीं भी लाजमी जाना है। लेकिन उन्हें आख्या पहला मेरा केस मुकम्मल हो लैण दिओ, जे मेरी कोई आस उम्मीद लगी तो चलो फिर तुसीं भी जाओ। लेकिन उन्हें दसिया कि बहुत ज़्यादा रश हुंदा है, बंदियां नूं ओह मिलदी कोई नहीं। इस तरह उन्हें कानून बनाया है, बंदियां नूं 6-6 महीने हो गए ने उहदे कोलों टाइम नहीं लभदा पिया। ओह बंदियां दे अंदर और दिलचस्पी बन गई कि असीं भी उहदे कोल टाइम लभीए ते लाजमी जाइए। पैसे वो अपने मूँह चों बोलदी सी, जितने उन्हें पैसे बोलने ने उतने बंदे ने देने ही देने ने। भावें कितना बंदे नूं पहला पुछदी सी कितना अरसा हो गया तेरे घर औलाद नहीं हुई, जिहदे 10 साल हो गए सी उहदे कोलों ज़्यादा पैसे मंगदी सी। इस तरह उहदा सिस्टम जिहड़ा वो चलिया सी। कहंदा जिसले वो साडे पिंड वाली गई तो वाकई जिसले 7-8 महीने गुजरे तो पता लगा कि उहदे घर ते औलाद होने वाली है। पूरे पिंड च रौला पै गया कि खाला बच्चों लई जिहड़ा वाकई कोई रखदी है, इसनूं 10 साल हो गए सी औलाद नहीं सी हो रही। तो देखो ना इहदे घर आस उम्मीद लगी है तो औलाद होने लई है। बंदियां च बड़ा रौला पै गया। उस पिंड दी एक होर गई, उहदा भी यह हिसाब होया कि उहदे भी घर औलाद हो गई। जिसले कहंदा 3-4 साडे पिंड दियां गईयां ते उहनां दे घर औलाद हो गई तो रोले पै गए कि वाकई उहदे हत्थ विच जिहड़ा शफा है। असल गल कोई बंदा दस के राजी नहीं सी कि अंदर दी किहड़ी गल है। बहरहाल कहंदा मेरी शादी नूं भी 4 साल हो गए सी ते साडे घर भी औलाद नहीं सी हो रही। ढेर डॉक्टरां नूं चैक कराया लेकिन डॉक्टरां नूं कोई गल पता नहीं सी लग रही। कदे कहंदे सी ए गोलियां खाओ, कदे कहंदे सी ए गोलियां खाओ। कहंदा लगातार साडा सिस्टम जिहड़ा है वो इस तरह ही चल रहा सी। लेकिन कहंदा मैं बड़ा तंग आ गया सा, कदे मेरे टेस्ट करवाते सी, कदे जनानी दे करवाते सी। मैनू तो समझ नहीं सी आ रही कि हुण किस तरह साडा सिस्टम चलेगा। मैं तो ना उम्मीद हो गया सा कि हुण जिहड़ा साडे घर औलाद नहीं होनी। कहंदा लेकिन जिसले पूरे पिंड च रौला पिया सी उस जनानी ने भी यही आख्या कि तुसी जिहड़ा वो हाला बच्चों लई कोल जाओ ते उत्थे जाओगे ते औलाद लाजमी होवेगी। कहंदा मैं ना करदा रहा कि असी उहदे कोल कोई नहीं जाना। वो कित्थे दी
डॉक्टर आई, लेकिन जनानी ने ज़्यादा मजबूर किया कि नहीं मैं जाना एक बारी असी भी ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ हो के आवीए। कहता जिस वेले फिर असी अपनी गड्डी स्पैशल करके गए 7-8 घंटे सफ़र, तो कहता पिंड भी करे राह च कच्चे राह भी आए, बड़ी मुश्किल नाल असी उत्थे पहुँचे। कहता मेरा तो दिमाग ही शार्ट हो गया, ये किस तरह हो सकता है कि ये जड़ा इलाज करती है। लेकिन कहता मैं जिस वेले उत्थे पहुँचा तो वाकई उन्हें अगे एक डंडा लवाया, तो उत्थे एक बंदा बैठे, उन्हें आख्या इत्थों ही पिछा हो जाओ, बाकी जड़ा ये अंदर जा सकती है, जाके गल कर सकती है। कहता जिसले वो गल करके आई दसिया 4 साल हो गए ने। कहता उन्हें 7 लाख रुपया मंगया, उन्हें कहा 7 लाख रुपया लवांगी तो इलाज करांगी गारंटी नाल। कहता जनानी ने मैनू आके दसिया कि इतने पैसे भी मंगती है, तो अद्धे पैसे असां पहले देने, अद्धे पैसे असी उस टाइम देने ने जिस टाइम साडे घर उम्मीद लग जाएगी। कहता मैं क्या अद्धे लैके भी अगर ना उम्मीद लगी तो फिर असी के करो। उन्हें आख्या नहीं तुसी जिस तरह भी है पैसे दिओ। कहता पैसे असी 5 लाख रुपया नाल लैके आए सा। कहता मैं 3 लाख रुपया उन्होंने दिता, मैं क्या ए लै तू ए लै जा। कहता 3 लाख लैके अंदर गई, उन्हें आख्या नहीं 50,000 और लैके आ, नहीं तो यह भी वापस लै जा। कहता फिर वापस आई, उन्हें आख्या 50,000 और दिओ। कहता फिर मैं 50,000 दिता, तो उन्हें आख्या ठीक है तू जड़ा ना अज राती जाना नहीं है, साडे कोल रहना है, इस वास्ते सुबह अपने जने नू आखी इस जगह तू तेनू आके चुक के लै जे। कहता मैं फिर और वापस आई, मेरी जनानी आके दसियो सू, मैं कहा चल सही है हुण देख लैने, उम्मीद ला लैने आ। कहता मैं गड्डी लैके उतों वापस टुर गया, उतों जाके कि दूर होटल शोटल लभा जिस तरह भी है। कहता मैं रात गुजारी, लेकिन जनानी जड़ा सुबह 8 बजे बाहर आई, तो कहता जिसले बाहर आई तो मैं उहदे कोल तफसील पूछी, उन्हें आख्या जी रात पूरी जड़ा ना वो जागदी रही है, गर्म पानी उन्हें करके रखिया सी, लंगरी सोटा कोल रखिया सी, पता नहीं के चीज़ां लगी सी ग्रैंड करन, वो करके ते मेरी इस जगह ते जड़ा मालिश करती रही है, तो पता नहीं अंदर भी कोई क्रीमा शीमा लांदी रही है। उन्हें आख्या ये कित्थे दा इलाज हो रहा, ये तो हो ही नहीं सकता। कहता लेकिन जिस वेले फिर असी उत्थों आ गए, उन्हें आख्या सी दोबारा तुसी महीने बाद फिर आना है, लेकिन तुसी यह कोशिश करनी है कि हुण 15 दिन बिल्कुल एक दूजे नाल मुलाकात नहीं करनी, 15 दिन बाद मुलाकात करनी है, जिस वेले फिर दोबारा आना तुसी लगातार बिल्कुल कोई नागा नहीं करना। कहता असी वापस आ गए, जिस तरह उन्हें आख्या असी उस तरह ही किया। कहता फिर जिस वेले वापस आया फिर जनानी उत्थे रात रही। कहता रात रही, फिर उन्हें वही सिस्टम किया सारा जिस तरह भी होंदा है। कहता फिर असी पूरी रात उत्थे रखी, उस तो बाद वापस आई। कहता वापस आके तो जनानी आंदी है मैनू बड़ी उम्मीद लग गई है कि मेरे घर आसमीद लगेगी। कहता उन्हें यह गल की ते तीसरे महीने वाकई जड़ा कहता आसमीद लग गई। कहता जिसले आसमीद लगी तो मैं भी बड़ा उहदे ते राजी हो गया कि वाकई उहदे कोल गल है। कहता साडे पिंड दी अगे 3 जनानियां नाल एक काम हो बैठिया सी, चौथी कहता मेरी हो गई सी। कहता जिसले होया तो मैं बड़ा खुश होया कि चलो ये काम हो गया, लेकिन कहता वो इतनी मशहूर हो गई सी, उन्हें फिर रेट कर दित्ते सी 15 लाख 20 लाख। कहता जिसले इतना पैसा जड़ा लैंदी सी बंदियां कोलों, ते बंदे भी बड़े खुश हो के दिंदे सी, औलाद तो अगे तो कोई चीज़ नहीं सी है। लेकिन कहता ये गल टुर गई पुलिस तक। कहता जिसले पुलिस नूं पता लगा तो पुलिस ने जिसले उत्थे रेट मारिया तो उहदे थलड़े कमरे च इतना को पैसा पिया सी, इतना को पैसा पिया सी। कहता बोरियां भरियां उहदे घर पैसा पिया सी, वो सारा पुलिस चुक के लै गई ते उन्होंने भी जड़ा नाल चुक के लै गई। कहता तकरीबन 6-7 साल उहदा पता नहीं लगा कि वो किधर गई है, बंदे ढूंढते ही रह गए ने, लेकिन उहदी समझ किसी नूं नहीं आई। उहदा घर भी उतों खत्म